سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین، آج کا بیان حضرت سید امین القدری کا بیان رہے گا۔ اللہ کا راضی ہونا، کون سے بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کن سے نہیں؟ تو چلیے بیان شروع کریں۔ میں مبارک پور کے قصبے میں آپ کو منتخب کرتا ہوں۔ حافظ ملت کا جواب تھا، حضرت میں ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ جن کی سوچ اونچی ہوتی ہے ان کے مقاصد بہت بڑے ہوتے ہیں، اور جن کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں ان کی سوچ بہت اونچی ہوتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کا مذاق یا کسی کو طنز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف اپنی نئی نسل کو اپنے بڑے بزرگوں کی فکر بتانا چاہتا ہوں۔ آج اگر کسی کو کہیں پر مقرر کیا جائے تو وہ پوچھتا ہے کہ مجھے ملے گا کتنا، اور حافظ ملت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جانا ہے تو استاد سے کہتے ہیں میں نے ملازمت نہیں کرنی۔ لیکن چونکہ استاد ہوتا ہے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے صرف علم نہیں پڑھایا تھا بلکہ عمل بھی پڑھایا تھا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لوگ صرف علم پڑھتے ہیں، حافظ ملت کہتے ہیں لوگ علم پڑھتے ہیں، صدر الشریعہ سے ہم نے علم بھی حاصل کیا ہے اور عمل بھی حاصل کیا ہے۔ صدر الشریعہ جانتے تھے حافظ ملت کو، جو بالغ ہونے کے بعد سے جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو اسے حافظ ملت کہتے ہیں۔ حضور حافظ ملت کو کیا ہم نے سمجھا؟ ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ شاید بہت ظلم کیا کہ ہم نے اپنی شخصیات کی اصلیت کو سائیڈ میں رکھ کر ہم نے صرف کچھ رسومات کے حوالے سے ان کو جاننے کی کوشش کی۔ حافظ ملت نے جب کہا حضور میں ملازمت اور مزدوری نہیں کرنا چاہتا، استاد نے فرمایا ملازمت کے لیے آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ میں تو خدمت کی بات کی، آپ کو خدمت کرنا ہے دین کی خدمت کے لیے جائیے۔ آپ اندازہ فرمائیں، پھر اللہ کا امتحان دیکھیں، اللہ اکبر، خدا کی آزمائش دیکھیں۔ ادھر مبارک پور 35 روپیے کے نذرانے پر حافظ ملت مبارک پور کی طرف جا رہے ہیں، اور جانے سے پہلے ایک علاقہ ہے وہاں سے 100 روپے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں 100 ملیں گے، اور دوسرے علاقے کے حوالے سے کہا گیا وہاں 500 ملیں گے۔ مبارک پور 35 روپے میں جانا طے ہو گیا۔ وہ لوگ کیا دیں گے نہیں دیں گے چھوڑیے، لیکن 35 روپے کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ 35 روپے دیے جائیں گے، اور ابھی سفر مبارک پور شروع نہیں ہوتا ہے۔ ایک طرف سے 100 روپے کی تنخواہ کا آفر ہے، دوسری طرف سے 500، لیکن جب حافظ ملت تک بات پہنچتی تو فرمایا میرے استاد نے مجھے خدمت کے لیے مبارک پور سونپا ہے، اس لیے اب میں اپنی بات سے پھر نہیں سکتا، اور 35 روپے میں پہنچے حال سے پھر نہیں سکتا، اور 35 روپے میں پہنچے۔ حالت یہ ہے کہ 4 مہینے تک کے تنخواہ نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ مسلسل لگے رہتے تھے اور مستقل کام کرتے تھے۔ بلکہ اللہ اکبر، حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا، چھٹیاں ہوتی تو سب سے اخیر میں جاتے، سب سے پہلے تشریف لے آتے، اور حال یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ٹہلنے نکلتے تو بھی تنہا نہیں جاتے بلکہ شاگردوں کو ساتھ میں لے کر جاتے تاکہ ٹہلنے کا وقت بھی ضائع نہ ہو، اور ٹہلتے ہوئے شاگرد سوالات کرتے رہتے، جواب پاتے رہتے، اور اس طریقے سے علمی استفادہ کا معاملہ بھی چلتا رہتا اور اپنا کام بھی چلتا رہتا۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک انسانیت ساز شخصیت ہے، سنیوں میں ایک انقلابی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے ادارہ قائم فرمایا اور کئی ادارے قائم فرمائے، اور بہترین انسان مصباح جان کی شکل میں عطا فرمایا، اور حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، مسلک کے حوالے سے انتشار جب ان کی کانوں تک پہنچتا تو وہ بے چین ہو جاتے، تڑپ جاتے، بے قرار ہو جاتے۔ آپ کی زندگی کا بہترین پہلو یہ ہے کہ آپ وقت کا صحیح استعمال کرنے کی تلقین فرماتے، آپ کام کے حوالے سے بہت لوگوں کو ابھارتے،
आप नसीहतें भी बड़ी खूबसूरत फरमाते हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह चूंकि एक इंसान साज शख्सियत थे, तो आपकी जिंदगी के अंदर जो मलफूजात हैं, आपकी जबान से जो निकले हुए अल्फाज हैं, आपकी जबान से जो निकले हुए हिकमत भरे जुमले हैं, वो जिंदगी में इनकलाब पैदा करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर आइए, एक मर्तबा का वाकया है कि हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक जलसे में तशरीफ ले गए। आमतौर पे जलसों में हम लोग भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि माइक बिगड़ जाता है, और जब माइक बिगड़ता है तो अक्सर मुकर्रिर लोग हों, नातखा लोग हों, नाजिम लोग हों, अहले मिंबर हों या मजलिस के लोग हों, क्योंकि जब बात बहुत खूबसूरत चल रही होती है और जब माइक बिगड़ता है तो खलल वाक़ई होता है, तो सबका टारगेट माइक वाला भैया हो जाता है, क्योंकि ची की आवाज आई, वो आई, सब एतराज करते, उसको घूर के देखने लगते हैं। लेकिन आइए, हाफिज मिल्लत का अंदाज क्या था, अल्लाह अकबर। जैसे ही माइक खराब हुआ, लोगों ने, मिंबर वालों ने और जमीन वालों ने माइक वाले को घूरना शुरू किया। तो हाफिज मिल्लत ने कितना प्यारा जुमला फरमाया, इरशाद फरमाते हैं, अरे माइक बिगड़ा है, इसमें माइक वाले का क्या कसूर है? माइक मशीन है, मशीन बिगड़ी तो इंसान का क्या कसूर है? और फिर एक तारीखी जुमला फरमाते, फरमाया मशीन बिगड़ने से उतना नुकसान नहीं होता जितना इंसान के बिगड़ने से नुकसान होता है। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें क्यों? अब उसकी तशरीह आप थोड़ा सा समझे। एक मशीन बिगड़ती है, वो मशीन दूसरी मशीन को नहीं बिगाड़ सकती, मगर एक इंसान बिगड़ता है, वो पूरी कौम को बिगाड़ देता। मशीन बिगड़े तो उतना नुकसान नहीं होता जितना इंसान के बिगड़ने से नुकसान होता। हुजूर हाफिज मिल्लत का अंदाज देखें, हम मशीनों के बिगड़ने पे नाराज हैं, हाफिज मिल्लत इंसानों के बिगड़ने की बात। आप देखें तो सही, बिगड़ा हुआ इंसान बिगड़ी हुई मशीन को घूर के देख रहा है। अंदाजा तो फरमाए, अंदाजा तो फरमाए, मशीन के बिगड़ने पे हमको इतना गुस्सा है, हमारे बिगड़ने पे कुदरत कितनी नाराज होगी। आप अंदाजा करें, हम जो बिगड़ गए, हमारे अफकार जो बिगड़ गए, हमारे नजरियात जो बिगड़ गए। हुजूर हाफिज मिल्लत ने, चूंकि जब बंदा अल्लाह की रजा के लिए जीता है तो अल्लाह उसकी जबान पर हिकमत वाले जुमले जारी कर देता है। हाफिज मिल्लत फरमाया करते थे, कम खाओ बदन सलामत रहेगा। वो बेहतरीन हकीम भी थे, बल्कि हकीम इब्ने हकीम थे, हिकमत जानते थे, बल्कि उनकी शुरुआत ही हुई हिकमत सीखने से। जो उनकी ज़िंदगी के बारे में मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा अहले मिंबर हाफिज मिल्लत के बारे में जानते हैं। कुछ लोग ने उनकी ज़ियारत भी की होगी, और उनकी ज़ियारत करने वालों की ज़ियारत तो आपने, हमने सभी की है। लेकिन तवज्जो करें, हुजूर हाफिज मिल्लत की शख्सियत को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं मुजाहिद मिल्लत, मुफ्ती आज़म और हाफिज मिल्लत को टूट कर चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने हाफिज मिल्लत के, मुजाहिद मिल्लत के, मुफ्ती आज़म के शागिर्दों को, मुरीद को और परवरदों को देखा, तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि जिन लोगों को उन लोगों ने बनाया वो इतने अच्छे हैं, तो वो लोग कितने अच्छे होंगे। हम लोग देखते हैं, हुजूर मुफक्किर इस्लाम को देखते हैं, हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन को देखते हैं, इन जैसे हुजूर सदरुल उलमा को देखते हैं, इन जैसे लोगों को हम देखते हैं, अल्लामा अरशदुल कादरी को हमने देखा है, तो मुफ्ती शरीफुल अमजदी रहमतुल्लाह अलैह को देखा है। तो इन लोग का इल्म, इनका तकवा, इनकी परहेजगारी, तो जब एहसास होता है कि या अल्लाह ये लोग इतने अच्छे हैं, तो वो लोग जिन्होंने इनको सजाया है, संवारा है, नोक पलक दुरुस्त किए, वो कितने अच्छे होंगे। तो बिन देखे उन लोगों के लिए अकीदतें जो दिल में पैदा होती है। तो हाफिज मिल्लत हकीम भी थे, फरमाते हैं कम खाओ बदन के लिए अच्छा है। सेहत कम खाने में, कम खाओगे बदन अच्छा रहेगा, सुभान अल्लाह। लेकिन तवज्जो करें, आज हमारा हाल क्या है। शायद हम ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना सेहतमंद रहेंगे, हालांकि बुजुर्ग लोग फरमा रहे कम खाओगे तो बदन सलामत रहेगा। बदन की सलामती कम खाने में है, और फरमाते रूह की सलामती गुनाह छोड़ देने में। अगर बदन सलामत रखना है कम खाओ, रूह सलामत रखना है गुनाह छोड़ दो। बदन की सलामती कम खाने में
रूह की सलामती गुनाह छोड़ने में, और दीन की सलामती कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने में है। गुनाह छोड़ो, रूह सलामत रहेगी, और कसरत से दुरूद पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दीन सलामत रहेगा। कितने मुख्तसर से अल्फाज हैं, और इन मुख्तसर से अल्फाज में हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितनी बड़ी बात फरमा दी है, कितनी अजीम बात फरमा दी है। चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए मैं हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का एक आखिरी मलफूज पढ़ करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों पर, अपने मुरीदों पर नजर रखा करते थे और उनको मना करते थे अक्सर सिगरेट पीने के हवाले से, तंबाकू खाने के हवाले से, इसी तरीके से हुक्का पीने के हवाले से हुजूर हाफिज मिल्लत बहुत सख्ती से मना फरमाते थे। और जब कोई सिगरेट पीता, बीड़ी पीता, हुक्का पीता, तंबाकू खाता, तो हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि लोग भी कितने अजीब है ना, कि अपनी हलाल की कमाई को वो जला करके उससे धुआं निकालते हैं और उस धुएं से लुत्फ लेते हैं। अल्लाह अकबर। हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, उनके अल्फाज पे तवज्जो करें, अल्फाज उनके हैं, जबान मेरी है। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, जब आपकी सेहत सलामत है तभी आप कर सकते हैं। आप अच्छे कारोबारी कब होंगे? जब आपकी सेहत सलामत है। आप अच्छे उस्ताद कब होंगे? जब आपकी सेहत दुरुस्त है। आप अच्छे बाप कब साबित होंगे? जब आप सेहतमंद है। आप अच्छे शौहर कब साबित होंगे? जब आप सेहतमंद है। आप अच्छे दोस्त कब साबित होंगे? जब आप सेहतमंद है। इसी तरह से अगर आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं, सेहतमंद है तो पढ़ सकेंगे। नमाजें पढ़ना चाहते हैं, सेहतमंद हो तो पढ़ सकेंगे। रोजे रखना चाहते हैं, सेहतमंद हो तो कर सकेंगे। तो याद रखना, अच्छी सेहत की वजह से आदमी दीन और दुनिया दोनों के काम कर सकता है। लेकिन आज आप अंदाजा करें, हमने अपनी सेहत ही का ख्याल नहीं किया। कुछ लोग ये समझते हैं सिर्फ तस्बीह और मुसल्ला ही दीन और इस्लाम है। माअज़ल्लाह, याद रखना, सेहत का ख्याल करना ये भी इस्लामी तालीमात में से है। अल्लाह अकबर। बेजा रात के 3-3, 4-4 बजे तक जागना सेहत के लिए मुज़िर है। इसी तरह रातों को भटकते रहना सेहत के लिए मुज़िर है। इसी तरह से देर से उठना सेहत के लिए मुज़िर है। अल्लाह अकबर। अड़गम दड़गम कोई भी ग़िज़ा जो हाथ लग जाए खा लेना, पी लेना, ये भी सेहत के लिए मुज़िर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहत का इतना ख्याल फरमाते थे कि जिस खाने के बाद सुस्ती पैदा होती है, अल्लाह के रसूल ने सुस्त करने वाले खानों को भी जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाया। जो खाने सुस्त कर दे, हुजूर ने उनको हाथ नहीं लगाया। और जो चीजें आज बीमारियां पैदा कर रही है, मेरी कौम के जवान उसके अंदर डूबे चले जा रहे हैं। आज सिगरेट का मशगला बढ़ता जा रहा है, हुक्के का मशगला बढ़ता जा रहा है, तंबाकू नोशी, गुटखा नोशी बढ़ती जा रही है। और तंबाकू और गुटखा नोशी के चक्कर में अल्लाह अकबर, फिर बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम दुश्मन अनासिर हमारे दरमियान नशे को प्रमोट कर रहे हैं। आप जानते हैं गुटखे ही की पुड़िया में एमडी की मिलावट हो रही है, तंबाकू ही की पुड़िया में बाज़ाब्ता तौर पर नशे की मिलावट हो रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, और अल्लाह अकबर, उस कौम के जवानों को मुल्क, मिल्लत और अपने जाती मसाइल से जो है वो गाफिल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त तो मुनज़्ज़म साजिश है कि उठती हुई कौम की इस नई नस्ल को नशे में गिरफ्तार कर दिया जाए, जराइम में गिरफ्तार कर दिया जाए, गुनाहों में गिरफ्तार कर दिया जाए। और हालात ये है, मेरी कौम के ये बेकसूर जवान, भोले भाले जवान, अल्लाह अकबर, जिनकी जवानी पे तरस आता है, अल्लाह अल्लाह, गलत सोहबत की वजह से, कभी हुक्के की बुनियाद पर, कभी सिगरेट की बुनियाद पर। याद रखना, ये सिगरेट के अंदर भी नशा डाला जा रहा है, हुक्के के अंदर भी नशा डाला जा रहा है, और याद रखिए, और हमारे जवान उसमें मुब्तला हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं कोई मुफ्ती नहीं कि मैं डायरेक्ट कोई हुक्म बयान करूं। आप हुक्म तो मुफ्तियाने किराम से जाकर पूछे, लेकिन मैं अल्लाह अकबर, कौम का एक अदना खादिम होने की हैसियत से, इतने हजारों की तादाद में जवान हैं जिनके सीनों में उम्मत की बेटियों के लिए दर्द
कर धुएं में अपने पैसों को उड़ाने वालों, बताओ क्या जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पर बुर्का पहन करके भीख मांग रही हो, उस कौम के मालदारों को, उस कौम के जवानों को किसने इजाजत दी कि वो हुक्के में और सिगरेट में, तंबाकू और गुटखा नोशी में और नशे में अपनी दौलत को जला करके राख कर दे? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या मैदान महशर में इस बारे में नहीं पूछा जाएगा? अपनी जवानी पर घमंड करने वालों, अपनी जवानी पर गुरूर करने वालों, अपनी जवानी पे नाश करने वालों, बताओ अगर हम ये सिगरेट, गुटके, हुक्के के पैसे बचाएंगे तो क्या हम किसी गरीब की बेटी जो 30-35 साल की उम्र में सिस्कियां ले रही है, उसके शादी का इंतजाम नहीं है, तो क्या हम उसके सर पे दुपट्टा नहीं डाल सकते, उसको सुहागन नहीं बना सकते? किसी कैंसर के मरीज को, किसी टीबी के मरीज को, किसी जिसको डॉक्टर ने बड़ी बीमारी के हवाले से जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, क्या हम उसका इलाज नहीं कर सकते? बताओ। अल्लाह अकबर। आज मेरी कौम के जवान सिगरेट के नाम पर, गुटके के नाम पे, हुक्के के नाम पे बाज़ाब्ता नशे में ढकेले जा रहे हैं, उसमें मिला करके नशा दिया जा रहा है। सरपरस्तों को भी एहसास होना चाहिए और ये भी याद रखो, अगर तुम ये समझते हो कि नशे से क्या होगा, नशे की खराबियां तो हर इंसान पर वाज़े है। फेफड़े सड़ रहे हैं उससे, कैंसर का मर्ज हो रहा है, आदमी नामर्द हो रहा है, बीवी के काबिल नहीं रह जाता, बच्चों की तरबियत के काबिल नहीं रह जाता, सबसे बड़ी बात ये वो अपने माशरे पे बोझ बन जाता है। अल्लाह अकबर। और इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश ये है कि ऐसे आप मफलूज कर दो मुस्लिम जवानों को, न ये पढ़ सके, न तिजारत कर सके, न आगे बढ़ सके। अल्लाह अकबर। मैं बात समेट रहा था, बात समेटते हुए वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।